Hello friends, I welcome all of you on the Fast Track Defense channel. This video is going to be very much important. In this video, I am going to discuss about salaries, allowances and what are the facilities an Indian Armed Forces officers get. Generally, if anyone wants to join Indian Armed Forces, I would suggest that salaries and allowances should not be taken as a criteria and it should not be taken as a basis of joining the Indian Armed Forces. Many other join Indian Armed Forces because they want to serve the country, they want to have a patriotic feeling, they want to be the pride of this country, and this should be the main aim of joining the Indian Armed Forces, not the salaries. But in this video I am going to discuss the salaries because many of them say that if you join Indian Armed Forces you don't get enough salaries are less, sometimes they are not even given the basic facilities. So to keep them shut, I am going to make this video that what are the salaries and allowances which an Indian Armed Forces get. Apart from salaries, what are the other benefits, what are the allowances they get, what are the, like, they get flying allowances, they get Siachen allowances. These things I am going to discuss in detail. So basically you are seeing that I have opened the PDF. This PDF you will get in the NDA notification, and here in starting it is mentioned regarding terms and condition of the services. Here army officers and equivalent rank in Air Force and Navy. For example, let's say you are checking for the lieutenant in the army, you can just compare the same salary to the flying officer in the Air Force and sub lieutenant in the Navy. So equivalent rank of Army, Navy and Air Force, you can just judge yourself based on your preference. Let's say your first choice is Air Force, then in that case you can compare your salary with lieutenant to the flying officer. And let's say if your first choice is Navy, then you can compare the salary of lieutenant to the sub lieutenant in the Indian Navy. So basically, to start with, fixed stipend for the cadet training. Let's say after getting selected through the IMA entry, that means CDS entry, or after getting selected through the NDA entry. In NDA entry for 3 years you will be trained at National Defense Academy Khadagwasla. That means here your graduation will be completed, and after completing of the graduation at NDA you will be shifted to the various branches based on your choice. Let's say if your first choice is Army, then you will be shifted to the Indian Military Academy, and if your first choice is Air Force, then you will be shifted to Air Force Academy Hyderabad, and if your first choice is Navy, then you will be shifted to Indian Naval Academy Elimala Kerala. So मान के चलिए कि आपका जो फर्स्ट चॉइस आर्मी है आईएमए, तो आईएमए के केस में जब आप अपने आईएमए, आईएनए और एएफए इस इंस्टीट्यूट में जब आप ट्रेनिंग पे होंगे तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 56,100 रुपीज़ का स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा. दैट मीन्स वाइल ट्रेनिंग इटसेल्फ, वाइल ट्रेनिंग एट द आईएमए, आईएनए और एएफए, आपको इस 56,100 रुपये की पर मंथ की सैलरी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही गौरव का बात है कि आपको ट्रेनिंग के टाइम में 56,000 का स्टाइपेंड, 56,000 की एक काइंड ऑफ सैलरी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये तो था आपका ट्रेनिंग के टाइम में. जब तक आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होता है आईएमए में, अगर आपका ट्रेनिंग 1 ईयर का हो या फिर 1.5 ईयर का हो, ये कंप्लीट ट्रेनिंग के पीरियड में आपको 56,100 रुपीज़ पर मंथ आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. ये है आपके ट्रेनिंग के टाइम में. ये आईएमए, आईएनए, एएफए तीनों के ट्रेनिंग में आपको दिया जाएगा. So basically after completing of the training you all will be posted to the various defense establishment, and if you are an army then you will become lieutenant. If you are in Air Force you will be posted as the flying officer. If you are in Navy you will be posted as the sub lieutenant. So from lieutenant, if you are lieutenant then your starting of salary between 56,100 rupees to 1,77,500 rupees, आपको इसके बीच में आपको सैलरी मिलने वाला है. 56,100 रुपीज़ से लेकर 1,77,500 रुपीज़ के बीच आपका लेफ्टिनेंट के बीच में सैलरी मिलने वाला है. इसके बाद जब आप प्रमोट होंगे कैप्टन इन द सेंस जब आप एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन जाएंगे या फिर नेवी में लेफ्टिनेंट बन जाएंगे, तो इस केस में आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, एंड द इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी विल बी 61,300 रुपीज़ टू 1,93,900 रुपीज़. तो ये तो था सैलरी के बारे में. इसके बाद व्हेन यू विल बी प्रमोटेड टू मेजर इन द सेंस आप आर्मी में मेजर हो, उसके बाद एयरफोर्स में आप स्क्वाड्रन लीडर, और उसके बाद नेवी में आप लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर जब आप पोस्टेड होंगे, इफ़ यू आर पोस्टेड इन दिस 3 पोजीशंस इन द वेरियस डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, देन इन दैट केस योर सैलरी इज गोइंग टू बी बिटवीन 69,400 rupees and 2,07,200 rupees. Then after that when we move to lieutenant colonel, in lieutenant colonel your minimum salary is going to be 1,21,200 rupees and your maximum salary is going to be 2,12,400 rupees. Between these two pay scales you are going to get your salary in your account. And after that if you are
or becoming colonel, then in case of colonel your minimum salary is going to be 1,30,600 rupees and maximum salary 2,15,900 rupees. Then if you are promoted to brigadier, then in case of brigadier 1,39,600 rupees to 2,17,600 rupees. Then to major general your salary will become 1,44,200 rupees to 2,18,200 rupees. Between these two pay scale you are going to get your salary. Then if you are becoming lieutenant general, after becoming lieutenant general your salary is going to be this one up, as you can see in your screen, between 1,82,200 rupees to 2,24,100 rupees and 2,05,400 rupees to 2,24,400 rupees. And when you become lieutenant general, that means either chief of army staff, vice chief of army staff, or army commander in the sense head of north command, head of south command, head of northwestern command, head of eastern command, western command. Then in that case your salary is going to be fixed, that is 2,25,000 rupees. And when you become chief of army staff, that means general in the army and admiral in the navy and chief of air staff, air chief marshal in the air force, then in that case your salary is going to be fixed 2,50,000. And this was the salary. And apart from this salary you are going to get so much of benefit from the Indian Army or Indian Air Force or from the Indian Navy. That benefit I am going to tell you. The first benefit is MSP. MSP stands for military service pay. So if you are serving in any of the military forces in India, military force irrespective of the army, navy or air force, you are going to get 15,500 rupees per month. Apart from this, इसके अलावा आपको 15,500 रुपया फिक्स्ड आप लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर के रैंक में आपको मिलने वाला है 15,500 रुपया पर मंथ। इसके अलावा मान के चलिए आपका यहाँ पे ये जो बेसिक था आपको बेसिक 60,000 रुपीज़ मिल रहा है, तो आप इसमें 15,500 और एडिशनली ऐड कर लें जो कि आपका 75,500 रुपीज़ हो जाएगा। ये तो था आपका बेसिक्स के अलावा मान के चलिए आप पायलट हैं, इफ़ यू आर बिकमिंग पायलट in the Indian Air Force or pilot in the Navy or pilot in the Army, if you are joining Army Aviation or if you are joining Naval Aviation, then in that case your allowances, or in that case you are going to get flying allowances of 25,000 rupees per month। ये आपको एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है जब आप फ्लाइंग को चूज करेंगे तो 25,000 रुपये पर मंथ अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक पे एंड अपार्ट फ्रॉम योर एमएसपी यू आर गोइंग टू गेट एडिशनल 25,000 रुपीज़ पर मंथ। इसके अलावा जो आपको अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं, डियरनेस अलाउंसेस आपको अभी मिलने वाला है 31%। 31% मतलब किसका 31%? जो आपका बेसिक पे होने वाला है। द बेसिक पे ऑफ 31% यू आर गोइंग टू गेट डियरनेस अलाउंसेस एंड दिस डियरनेस अलाउंसेस इज गिवन टू ऑल ऑफ देम, बी इट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इफ यू आर ज्वाइनिंग एनी अदर डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया, डियरनेस अलाउंसेस इज 31%। मान के चलिए आपका बेसिक पे 60,000 रुपीज़ है, तो 60,000 रुपीज़ का 31% जो कि आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 18,000 रुपया, मतलब अराउंड 18,000 to 20,000 रुपीज़ आपको डियरनेस अलाउंसेस मिलने वाला है। फिर आपको पैरा अलाउंस मिलने वाला है 10,500 रुपया। फिर आपको पैरा रिजर्व अलाउंसेस, जब आप पैरा ज्वाइन करते हैं, जो स्पेशल फोर्स पैरा ट्रूपर्स ज्वाइन करते हैं, तो आपको 2,66,025 मिलने वाला है। जब आप इंस्ट्रक्टर के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आपको 10,500 रुपीज़ पर मंथ मिलने वाला है। इसके अलावा जब आप स्पेशल फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब पैरा के अंदर भी अलग अलग फोर्स हैं, तो जब आप स्पेशल फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो इस केस में आपको एडिशनली 25,000 रुपीज़ पर मंथ के रूप में मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको कितने सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं। लेकिन जब मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, जब आप इंडियन आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट पोस्टेड होंगे, इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग एट अकेडमी, इफ़ यू आर पोस्टेड एट लेफ्टिनेंट इन द इंडियन आर्मी और फ्लाइंग ऑफिसर इन द इंडियन एयर फोर्स और सब लेफ्टिनेंट इन द इंडियन नेवी, द बेसिक सैलरी इज गोइंग टू बी अराउंड 1,20,000 रुपीज़। 1,20,000 रुपीज़ यू आर गोइंग टू गेट मिनिमम। आपको इतना तो मिलेगा ही। जब आप ये सारे अलाउंसेस को ऐड कर देंगे तो आपको 1,20,000 रुपया तो मिलने ही वाला है। लेकिन जब आप फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करेंगे तो ये फ्लाइंग ब्रांच में आपको 25,000 रुपया एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, मतलब आपको 150 के मतलब 1,50,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया तक भी आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलने को मिल सकता है। तो ये तो था, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके अलावा जो आपको अलग अलग अलाउंसेस मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द रैंक एंड डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस पोस्टिंग। अगर आपका पोस्टिंग हाई एक्टिव फील्ड एरिया में है तो आपको उस केस में
16,900 रुपया पर मंथ आपको एडिशनल मिलने वाला है। अगर आपका पोस्टिंग फील्ड एरिया में है तो आपको 10,500 रुपीज़ का एडिशनल पे मिलने वाला है। अगर आपका पोस्टिंग मॉडिफाइड फील्ड एरिया में तो आपको 6,300 रुपीज़ पर मंथ में आपको एडिशनली मिलने वाला है। और अगर आपका पोस्टिंग हाई एल्टीट्यूड एरिया मतलब हाइट में आपका पोस्टिंग मान के चलिए सियाचिन में है, आपका कोई पोस्टिंग हिली एरिया में है, तो उस केस में हिली एरिया में भी अलग अलग कैटेगरी को डिवाइड कर दिया गया है। अगर आप कैटेगरी ए में फॉल करते हैं, कैटेगरी 2 में फॉल करते हैं, कैटेगरी 3 में फॉल करते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग अलाउंसेस। 3,400 रुपीज़ पर मंथ फॉर कैटेगरी 1, 5,300 रुपीज़ पर मंथ फॉर द कैटेगरी 2 एंड 25,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर द कैटेगरी 3। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसी हिसाब से आपको अलाउंसेस मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक सैलरी ये सारे अलाउंसेस आपको सबको मिलने वाला है अगर आपको पोस्टिंग उस हिसाब से मिलने वाला है तो। इसके अलावा जब आप सियाचिन में पोस्टेड होंगे, इफ़ यू आर पोस्टेड इन सियाचिन, आप जितने महीने तक सियाचिन में पोस्टेड होंगे उतने महीने तक आपको मंथली बेसिस पे 42,500 42,500 रुपीज़ एडिशनली आपको मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट 42,500 रुपीज़ इन एडिशनल इफ़ यू आर पोस्टेड टू सियाचिन। सो दिस इज अ वेरी गुड चांस। ये आपके लिए एक मोटिवेशन होने चाहिए। लेकिन मैं तो आपसे कहूँगा कि आफ्टर सीइंग द सैलरी आपको डिफेंस ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन इससे आपको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन, एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाएगा इंडियन डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन होने के लिए। इसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंसेस, यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए 20,000 रुपया पर ईयर मतलब अराउंड आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1.3 के 1,1300 रुपया आपको पर मंथ आपको यूनिफॉर्म अलाउंसेस के रूप में मिलने वाला है। इसके अलावा राशन अलाउंस भी आपको मिलने वाला है। राशन अलाउंस के अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलने वाला है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 7,200 रुपया, 3,600 रुपया। इसके अलावा आपको चिल्ड्रन का एजुकेशन अलाउंसेस आपको मिलने वाला है जो कि आपको 2,250 रुपया पर मंथ के रूप में मिलने वाला है। इसके अलावा आपको हॉस्टल अलाउंसेस मिलने वाला है 6,750 पर मंथ आपको मिलने वाला है आपके चिल्ड्रन के लिए। मान के चलिए आपका चिल्ड्रन है कहीं और पढ़ाई कर रहा है, तो उस केस में अगर आप अपना चिल्ड्रन का स्कूल फीस आप इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर में आप अपने यूनिट में दिखाएंगे तो आपको मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए आपको 6,750 रुपीज़ पर मंथ आपको दिया जाएगा हॉस्टल सब्सिडीज़। तो ये तो था एक कंप्लीट जानकारी। सिंपली इसका जो लिस्ट है ये अभी एंडलेस है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में भी इसको रेफर कर सकते हैं। तो ये तो था एक कंप्लीट जानकारी आपको इस अलाउंसेस को लेकर। बेसिक जब मैं आपको इसका आइडिया दूँ तो आप मिनिमम जब आप डिफेंस ज्वाइन करेंगे तो इन सारे अलाउंसेस को ऐड करेंगे अपने बेसिक सैलरी के साथ। ये है आपका बेसिक सैलरी। इस बेसिक सैलरी के साथ साथ जब आप इस MSP मिलिट्री सर्विस पे डियरनेस अलाउंसेस, पैरा अलाउंसेस, पैरा इंस्ट्रक्टर अलाउंसेस, इसके अलावा फ्लाइंग अलाउंसेस के अलावा हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस, इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सियाचिन अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, राशन अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, इतने सारे अलाउंसेस आपको इंडियन डिफेंस फोर्सेस में मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन का फैक्टर भी बन सकता है। इसीलिए आप अपने प्रिपरेशन में बूस्ट लाएं। आगे आने वाले जो NDA का एग्जाम है, NDA 2 2022 या फिर CDS 2 2022, इन दोनों एग्जाम में आप फोड़ दें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। और जितने सारे अपडेट्स आते हैं आपको इंडियन आर्मी से, इंडियन नेवी से, इंडियन एयरफोर्स से, सारे जॉब रिलेटेड अपडेट, डिफेंस के जॉब रिलेटेड अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको SSB इंटरव्यू का भी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि आप अपना SSB का कॉल ऑफ लेटर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डेट सिलेक्शन लिंक कहाँ से कर सकते हैं, आप अपना कॉल ऑफ लेटर को कैसे फिलअप कर सकते हैं। इसके बारे में भी आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये तो था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें, मैं वहीं पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। थैंक यू, जय हिंद, सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस।